नॉर्मली आप क्या पूछते हैं कस्टमर को? How many employees do you have in your business? ओके, हाउ मेनी Employees do you have in your business? एम्प्लॉइज Have in your business? do you have in your organization? Okay, What kind of business you are in? what kind of business are you in? Okay, very nice. Do you have the international client base? Do you have international client base? Does your employee work from home? Sorry? Does your employee work from home? Does your employee work from home? What budgets have you allocated? Superb. What budgets have you allocated? What is the current setup of business? What is the current setup of telecom? Current setup of telecom in your office. In which areas you look for our help? In which area do you look for our help? What is your payment procedure? Superb. What is your payment procedure? How much time available for the project? Project timing. Project time. Project timing. What is your quality requirements? What is your quality requirements? Is it similar kind of equipment or device? Product. Are you using similar products? Who are the other suppliers? Who are other suppliers? Are you satisfied with it? Okay. Anybody else? Anything else? That's it. Product related question. What change you बताओ. expect from this Application. What application? What is the labor cost? What application you are thinking of? What? Application, How is your organization? What processes you are following? What is organization structure, what is your productivity? What is the new business plan? एक मिनट, productivity, somebody said process. Okay, now I'm short of board, so it's okay, right? So we've had about 18-19 questions on the board, right? So why I've mentioned it, we'll talk about it. Now, generally when we get into probing or asking questions, right? We need to understand, and we've just written down about 5 examples or 4 examples, doesn't matter in terms of numbers, right? We have written down some examples, yes or no, right? Now what we wrote is 2 type of questions. Either a question can be a factual question or it can be a opinion based question, right? Now let's take one at a time. What do we understand by factual question? Factual, which will give us facts, right? Do we agree? Yes or no? Right? Facts is facts, right? For example, I'll borrow help. Whom do I borrow help? Subah se, let me go to my young friend, right? What's your name? How old are you? Where do you stay? How many family members? Do you have a 2-wheeler or 4-wheeler? Is your flat your own or rented? How many brothers, sisters? One sibling. Brother or sister? Sister. What does your father do? I'm so sorry. What is your mother doing? Sorry? What is your mother doing? She's a professor. She's a professor. Now what kind of questions are these? What kind of questions are these? Huh? Now if I ask my friend Pratik, what is your name? तो वो थोड़ी बोलेगा, सर नाम पे से ये ख्याल आया. बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा. Let me tell you, very long ago, once upon a time, I was born. Right? And that was a mistake conducted by my parents. Now the mistake is 24 years old, sir. And the mistake is called as
प्रतीक ऐसा ये बोलता है, मैंने नहीं बोला। ऐसा बोलेगा क्या बेचारा? उसको बोला नाम क्या? प्रतीक। क्या उम्र है? 24। कहाँ रहता है? भोसरी। दिमाग लगाना पड़ता है क्या प्रतीक भाई? कितने भाई बहन? एक। 2 व्हीलर 4 व्हीलर है। सो फैक्चुअल क्वेश्चन समझ में आ गया? सो आई जस्ट बोरोड योर हेल्प, राइट? Have you understood factual questions which will give you a lot of facts, information, data, right? And best part of factual questions is आपको पूछने में दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता, कस्टमर को जवाब देने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। Are we with each other? Yes or no? Then comes the next set of question which is called as opinion based question. What is an opinion based question? What do you understand by opinion? हाँ प्रतीक। प्रॉपर्टी विषयी आपल्याला काय वाटतं? ए राजा, क्वेश्चन नाही विचारत मी. ओपिनियन क्वेश्चन कशाला म्हणतात? ओपिनियन क्वेश्चन्स कशाला म्हणतात? त्याचं डेफिनेशन काय? जसं आपण फॅक्च्युअलचं दिलं की सर आपल्याला ते फॅक्ट्स देणार. हिज व्ह्यूज. ॲब्सोल्युटली वंडरफुल किशोर साहेब. सो हिज व्ह्यूज, व्हेरी सिंपल. व्ह्यूज म्हणजे त्याच्या मनात काय वाटतं त्याला. येस ऑर नो? सो लेट मी टेक माय हेल्प ऑफ माय यंग फ्रेंड अगेन. Instead of asking all these laundry questions, suppose I would have asked, my dear friend, can you tell me a little about yourself? So will I get more and less the same information that Pratik was sharing when I asked him a lot of factual questions? Yes or no? Yes or no? Somebody might miss what you want. Absolutely. But most of the information, that's the reason I use most of the information. Right? Now many things that I asked him, I did not even have to ask him. If I would have done my homework properly, then most of this information would have been available with me. Are you now seeing the connect of? Right? Now, let me make it more practical. Right? So what we are going to do is, we are going to go back to our drawing board. सगळ्यांनी प्रश्न लिहिलेत स्वतःचे? येस ऑर नो? 1 2 3 4 जे पण लिहिलेत. राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू रीड अवर क्वेश्चन्स टू अवरसेल्व्स. स्वतःलाच प्रश्न विचारायचा आणि स्वतः डिसाइड करायचं ते फॅक्च्युअल आहे की ओपिनियन आहे. अगर फॅक्च्युअल आहे, ऐका ऐका ऐका, थँक्यू फॉर लिसनिंग. ह्याला सकाळपासून सांगतोय, घाई बघा केवढी आहे. इफ इट इज अ फॅक्च्युअल क्वेश्चन, अगेन्स्ट द क्वेश्चन यू विल राइट अ बिग एफ. If it's an opinion question, you will write a O. कळलं? Start. Both नाही होऊ शकत. What is your product line and how can I contribute in your goals? Correct. So एक factual हुआ, वो second question opinion हुआ. So पहला factual है, second opinion है. Correct बोल रहा है तू. So both मतलब actually तूने 2 question पूछा है, तूने एक बना दिया उसको. सो खुद ही पढ़ो, आपको खुद को जवाब मिलेगा. आपको मेरे को पूछने का जरूरत ही नहीं शाहजी साहब. लिखा? कौन सा क्वेश्चन अपना ज्यादा आ रहा है? फैक्चुअल. एटलीस्ट वी आर बीइंग ऑनेस्ट विथ ईच अदर, इजंट इट? पण बेईमानी तो नहीं कर रहे. अच्छा, अभी आप में से कितने लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं? सभी चला. मेरी भी मती मारी गई है. तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े लोग को क्या पूछता हूं. कभी कभी उम्र हो रहा है ना, थोड़ा सठिया रहा हूं. ओके. सो आप में से कितने लोगों को कभी तो पांडू, आम्ही मुंबईमध्ये त्याला पांडू म्हणतो, इथे काय म्हणतात? मामा. हाँ, मामा. कितने लोगों को मामा ने पकड़ा है कभी ना कभी, जाने अनजाने में? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस. जो भी गाड़ी चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है, बदकिस्मती से कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है. बेचारे का गलती हो ना हो. हैव यू एवर सीन how this so-called mama or Pandu interacts with you? He first ask for license. He will first ask for License. license. पहिला काय करणार? साइड मध्ये लावली तर चावी काढतो. हा. सो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र अँड रेस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट मुंबई, वी डू नॉट हॅव दॅट ट्रेंड. ऑल द अदर पार्ट्स दे टेक अवे द की. नंतर लायसन्स. आता लायसन्स हातात असतं तरी विचारतो, आणि बघतोय तरी विचारणार नाव काय? अरे लिहिलंय त्याच्यावर. राहतो कुठे? ऍड्रेस आहे, तूच दिलंय लायसन्स. आरटीओ. कुठे जात होता? कुठून येत होता? पीयूसी आहे का? इन्शुरन्स आहे का? कागद आहे का? सिग्नल कशाला तोडलं? अरे बाबा, तुला पाहिलं असतं तर माझी. So when you keeps asking you this kind of questions, honestly tell me, how do you feel? Irritated. Absolutely पटकन येतं ना. कसं फिलिंग होतं?
irritation. So what he does is, by questioning, he does a lot of, and why does this irritation happen? Because he uses a technique called interrogation. Absolutely correct. He uses a technique called interrogation. Interrogation मतलब पूछताछ. अच्छा, उसको सिखाया गया है कि कस्टमर को साइड में लेने का और उसको इंट्रोगेट करने का. इंट्रोगेट इसलिए करने का क्योंकि वो बहुत क्या होगा. अच्छा, कई बार दिल में क्या आता है जब ऐसा इरिटेट करता है? दिल में क्या आता है, इसके साथ क्या करूं? एक देखो एक्सप्रेशन सब बोलता है. एक उसको ठोक देने का, यस और नो. और अपन अक्लमंद है, अपन क्या बोलते हैं, इसको ठोक देगा दूसरा केस हो जाएगा, इससे अच्छा निपटाओ, यस और नो. बट इज द एक्सपीरियंस गुड? इज द एक्सपीरियंस एक्साइटिंग? हाउ इज इट? इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ irritation, yes or no? But let's understand the simple art of probing. Probing is not interrogation. Probing is not irritating the customer. Probing is the art of doing and there is a lot of difference between, unfortunately, interrogation and investigation. Are you with me? There's a lot of difference between interrogation and investigation. The second question leads to the answer of the first question. Answer of the first question. For example, Like if you ask how is the production going on, just general, if you can explain. So we will explain something and then you can go into detail. correct. So what you're talking is so much sense, Mohit. The idea is, can I again engage with the guy asking right kind of what? So suppose I was in your place, I would have said, sir, can you tell me what is your expectation from us as a service provider? तुमची काय अपेक्षा आहे आमच्याकडून as a service provider? So everything that possibly you want to know will come out now, because हर एक का expectation is Sometimes we have some products which he doesn't know about it. Then what? जैसा Sir, this हाँ, you want to help sir? हाँ, ज्याला त्याचं प्रॉडक्ट नकोच आहे. ते सकाळपासून मी सांगून सांगून थकलो सर, तरी आपल्याला Understood. The solution is a part. But sometimes, let's say in telecom, if you are having a CRM setup, he is normally dialing through his PRI. correct, The cost is high. Correct. He doesn't know about the product which we have. Correct. We were here for something else. दादा पहिलं तू त्याला ते तर विचार सर, करंटली हाऊ डू यू मॅनेज युअर कॉल सेंटर? Alternative brilliant option. Have you looked at any kind of option which could possibly help you cut down your? That's what. What I'm trying to say is, if I'm going for a sales, I don't know whether he has that setup or not. करेक्ट. सो पहले तो उसको वही पूछने का ना फिर, सर कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज योर करंट सेटअप एंड हाउ डू यू ऑपरेट योर, Correct. Correct. Right. एंड देन आई कैन बिल्ड. इफ आई नो दैट उसके पास वो नहीं है या उसके पास है और उसका कॉस्ट बहुत हाई है, then you can say, sir, suppose we help you cut down this cost, how do you feel it will benefit your organization? That way we can. But what is this questioning? It's an investigation. I am asking opinion based question कि अगर मैंने आपको खर्चा बचाने में मदद किया, आपको क्या लगता है आपके कंपनी को उसका कैसा फायदा होगा? हर आदमी को पैसा बचाने से फायदा अलग तरीके से हो सकता है. You and I are nobody to decide उसको फायदा कैसा होना. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जिस वो बोलता है मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, आप हम चालू हो जाते, सर माझ्याकडे मस्त पीआय Hosted conference. व्हॉट होस्टेड कॉन्सेप्ट आहे, हे आहे ते आहे. आपण त्याच्यात अजून मला त्याची बरोबर जरूर समजली. डज ही एक्चुअली वांट टू कट डाउन कॉस्ट? आई हैव डिसाइडेड कि उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है. आई एम नोबडी टू डिसाइड कॉस्ट ज्यादा है या ही मे बी हैप्पी विद दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो उसके मुंह से निकलवाना पड़ता है कि हाँ मेरे को दर्द हो रहा है यार, क्योंकि अगर वो अपने मुंह से बोलेगा मेरे को दर्द हो रहा है, तो ही वो क्या मांगेगा? दवा. अगर आप उसको बोलोगे सर आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बोले तेरे को इतना चिंता है मेरे दर्द का, बोले हाँ, बोले फिर तू ही देख, मैं तो कुछ करने वाला
I hope you're getting the point. So I'm very happy with your questionings. I'm very relating to what you're asking. So please understand, मुझे ये क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा कि नहीं? फिर मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स पूछना पड़ेगा, लेकिन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्टिव होना चाहिए और मेरे को फैक्चुअल क्वेश्चन को मिनिमाइज करना पड़ेगा. आर यू विथ मी? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा तो कस्टमर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक हद तक मैं तुमको पहला 3-4 सवाल का जवाब पूछूंगा, बाद में मैं क्या करता हूं एज अ कस्टमर, अच्छा वो सब छोड़ो, आपके पास क्या है? और जैसे मैं बोलता हूं आपके पास क्या है, आपकी तो आत्मा, फिर तो आपके अंदर का आदमी जागरूक हो जाता है. फिर तो सर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको बॉक्स में पैक करके वेयर हाउस में हम भेज देंगे, साइज बताओ खाली आप. सो कस्टमर भी ना एक पॉइंट के बाद बोलता है, यार इतने सारे सवाल तो मेरी बीवी नहीं पूछती, तू इनकम टैक्स से है क्या? इनकम टैक्स वाला आके पूछता है, तभी भी मेरे को गुस्सा आता है साला मेरे धंधे में आके, लेकिन वो ऑफिशियल है, उसके पास वर्दी है, उसका काम ही वही है. बट अगर इनकम टैक्स वाला तुम्हारा ऑफिस में आया तो इज इट एक्साइटिंग? नो, गॉड फॉरबिड, आना भी नहीं चाहिए. प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारे पास तो वर्दी भी नहीं है. और फिर भी हम लोग मामू बन के जाते हैं. इधर देखो कितनी एम्प्लॉइज, होमवर्क का पार्ट था ना तेरा. किती एम्प्लॉइज बाहेरून जरा झलक मारली असती तर दिसले असते 50, 20, 25, थोडे इथे तिथे झाले असते 2-4 मोजात. बट दैट कुड हैव नॉट बीन सो स्क्यूड ना. दिखता नहीं है क्या तुम्हारे को एक 25-30 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय है, तो उसमें क्या रॉकेट साइंस है? अपन 50 सोचेंगे, वो 45 होगा. That's the only difference that I can validate. Right? So अभी आप ये कोई भी क्वेश्चन पूछो, how many employees? कैसा क्वेश्चन है ये? Super. What kind of business you are in? सर तुमचा बिझनेस काय आहे? मी कॅन्डीज बनवतो, कॅन्डीज. कसला क्वेश्चन हा? अभिषेक. Fact. So don't get confused. Ask yourself the question, give yourself the answer. Sir, do you have international clients? Does your employee work from home? What budgets have you allocated? Current setup of telecom in your office. Which areas do you look for our help? God bless you. अभी तुम्हारा कोपड़ी चल रहा है. So this is opinion. What is the payment procedure? Project timing. What is your quality requirement? Quality requirement बाबा. Specifications होगा ना? क्या any answer क्या? मेरे को ये 4 चीज चाहिए. Are you using similar products? What other suppliers? Are you satisfied? Opinion. Applications, organization structure, productivity, process. अपन किसके किंग है? इंट्रोगेशन. तो फिर कस्टमर क्या बोलता है प्यार से? प्रपोजल आहे तुमच्याकडे? प्रपोजल, ब्रोशर आहे, कॅटलॉग आहे, विजिटिंग कार्ड आहे. आपण भी खुश हो जाता आहे ना सर, तर दे बाबा आणि जा. पण एवढं डोकं झेपत नाही रे बाबा. So what happens is, unfortunately, the poor guy is getting very, very, because you are doing a lot of unknowingly. ऐसा नहीं कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन इसकी आदत पड़ गई. अच्छा, वो मन में क्या बोलता है? मेरा ही ऑफिस, मेरी ही चाय, मेरी ही क्लास लोगे. यार कुछ तो लिमिट होना चाहिए कि नहीं? फिर अगर भड़कू आदमी है, प्यार से बोलेगा, देखो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, प्लीज सेंड मी योर प्रपोजल, आई लेट यू नो. तो एकदम तुमको, अगर डिसेंट आदमी है तो वो एकदम प्यार से बोलेगा, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्रपोजल है, प्रपोजल पाठव, मी तुला
So in a polite way, he says, please get lost. Are you with me, friends? So please understand what we unknowingly do. So please learn the art of an investigation. कैसा होता है? By asking the right opinion questions, right? So opinion questions are always also called as open-ended questions. What are they called? Right? So factual questions जब आप और मैं पूछते हैं, इसका explanation मैंने आपको दे दिया, so let's not waste time on that. One is called as open-ended question, the other is called as close-ended question. Open-ended मतलब options हो सकता है जिसका खुल के जवाब दे सकते हैं, subjective. So opinion questions are called as open-ended questions, and these are called as factual questions are called as close-ended. Right? Too many close-ended questions will start irritating the customer. Are you with me? हाँ, लेकिन फाइनल ऑर्डर मांगना है तो इसमें से क्या पूछेंगे? हाँ, उधर जाके गलती से नहीं पूछना, सर आपको क्या लगता है ऑर्डर के बारे में? Now I was very surprised with this question. Sir, what is your payment procedure? कौन है ये कलाकार? शाहजी, मैं गोदरेज में बहुत काम करता हूं और गोदरेज लॉक्स अपना बड़ा कस्टमर है. मैं तेरे को लॉक गिफ्ट में दूं, ताला दे दूं गिफ्ट में, लगा दे ऑफिस के बाहर. बाबा कस्टमर को नहीं पूछते तू पेमेंट कैसा करेगा, अपन डिसाइड करते अपने को पेमेंट कैसा. इज वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए. ठीक है, यहां अपन ने गलती से पूछ दिया, अगर गलती है तो मत करो, अगर पहले भी करते थे तो इसको अवॉइड करो फ्रेंड. राइट? नेवर मेक दिस कार्डिनल सिन. सर आप कैसा पेमेंट करेंगे? मेरे जैसा गुजराती मिला तो मैं बोलेगा मैं पेमेंट ही नहीं करेगा. और फिर वो तो मारवाड़ी लोग के साथ डील करते हैं, इनको पूछ, वो तो बोलता है तू मेरे को पेमेंट कर क्योंकि मैंने तेरा माल लिया. तो फंस जाएगा. सो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज थिंक बिफोर यू आस्क. आर यू विथ मी फ्रेंड्स? अच्छा, ये वापस होमवर्क का कार्यक्रम है कि जाऊंगा तो इसके साथ किस तरह के सवाल करूंगा ताकि ये खुल के मुझे अपने मन की बात ताकि मेरे को उसकी जरूरत समझने में आसानी हो. आर यू विथ मी? सो टिपिकल 2-3 टेक्निक्स है इसको पूछने का. ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे शुरू होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस, open-ended questions generally start with questions like sir, how can we service you? How can we create a partnership with you? Sir, what are your expectations from us? Sir, why are you looking for a change? तो जब आप इस तरह के सवाल करोगे कस्टमर को आप सोचने पे मजबूर करोगे. राइट? सो आपको अपने ऑफिस में बैठ के ऐसा सवाल लिखना पड़ेगा जिसको अपन ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं. क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको सोचने का जरूरत नहीं, आप लोग उसमें किंग है, वो आपको नेचुरली आ जाता है. अच्छा, वो सबको आता है, डोंट वरी. ऐसा नहीं कि आप लोग ही ये सीन कर रहे हैं. हम लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, हमने बड़े बड़े एमडी को देखा ये करते हुए. तो जरूरी नहीं मैं एमडी हो गया तो मेरे को सेल्स आता है. आर यू विथ मी फ्रेंड्स? सो टेंशन लेने का बात नहीं है, खाली इतना ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है मेरे को उधर कस्टमर के साथ जाके क्या नहीं बनना है. वो रास्ते में ध्यान रखने का, जाते जाते गाड़ी चलाते चलाते तो दिखेगा बीच बीच में. हाँ, जैसे उसको देखेगा तो याद रखने का तू नहीं बढ़ना भी. डोंट बिकम अ मामू और पांडू. डोंट मेक कस्टमर्स लाइफ मिजरेबल. डोंट इरिटेट हिम सो मच दैट ही सेज बॉस प्लीज. Be genuine enough, try to understand. So ask questions like, why do you feel our service could help you? So that's what I told you. Sir, why do you feel? Suppose how do you feel if I save your cost? It may enhance your company's functioning. तो अगर मैं आपका कॉस्ट बचाने में मदद करता हूं तो आपका कंपनी का फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ेगा? अब किसको सोचना पड़ेगा?
और वो मुंह खोल के मस्त इंटरेस्ट दिखाएगा और बताएगा, राइट? सो प्रोबिंग क्यों करते हैं? टू जनरेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट डू वी आइडेंटिफाई? नीड्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. वी आइडेंटिफाई. Now, if you see these questions, most of these questions, had you done your suspecting, prospecting properly, ये ज्यादातर क्वेश्चन गायब हो जाता. Yes or no? You ask yourself. इसमें से 90% प्लस क्वेश्चन गायब हो जाता है अगर मैंने क्या किया है. So again, I am linking you the importance of homework. So Zig Ziglar साहब ऐसे नहीं बोलते 70% of your work is homework. 30% is execution, right? So problem क्या है? जब होमवर्क नहीं होता तो बदकिस्मती से ये सब फालतू क्वेश्चन. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें से कई सारे क्वेश्चन रिसेप्शनिस्ट बना सकती है, उसका अकाउंटेंट बता सकता है, उसका कोई एग्जीक्यूटिव परचेस बता सकता है, उसका फ्लोर पे कोई प्रोडक्शन वाला बता सकता है. ये वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को पूछने का जरूरत. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब उस तरह का क्वेश्चन उसके साथ बैठ के पूछते हो, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आप उनकी नजरों में गिर जाते हो. आर यू विथ मी फ्रेंड्स? और जैसी कस्टमर की नजरों से आप गिर गए, फिर कस्टमर आपके साथ धंधा नहीं करेगा. आई होप वी आर टॉकिंग सेंस, एंड दैट्स वेयर यू सेड कि यार तू सेंस का बात कर सकता है तो बात कर मेरे साथ. गाड़ी बेचने आया, मजाक कर रहा है. बिकॉज आप भी कस्टमर है ना बहुत सारी चीजों में. आपको नहीं लगता आपके पास जो लड़का आके बैठे या लड़की आके बैठे वो सेंस का बात करे, मुझे समझे? जब मैंने आपके साथ एंगेज किया था, डिड आई आइडेंटिफाई योर नीड? डू यू रिमेंबर अरुण पोद्दार साहब? Because I am taking your example because you two gentlemen, I came. Most of the other gentlemen, I suppose my team has gone. So you have to sit and you have to be genuinely again interested in the need of the customer. So probing is a very beautiful art and it is scientifically proven in sales. आप जो भी सुबह से सीख रहे हैं उसमें किधर भी गलती करो माफ है. अगर आपने यहां गलती किया तो आपका पत्ता साफ है. So probing, there is no excuse. अगर probing बराबर नहीं हुआ तो गारंटी मैं आपको लिख के देता हूं, धंधा होने वाला नहीं है. लिख लीजिए आप. सो जहां जहां आपका सेल क्लोज नहीं हो रहा है, वहां अगर आप नीचे आके उस बिल्डिंग में खड़े हो गए और सिर्फ 5 मिनट आपने खुद के साथ बात किया, आपको एहसास होगा यार गड़बड़ उधर हो गया. अपन कस्टमर को समझ नहीं पाए, उसकी जरूरत समझ नहीं पाए. आपको खुद को जवाब मिलेगा. अच्छा, गलती हम सबसे होती है, लेकिन वो गलती अपन बार बार नहीं करना चाहिए. आर यू विथ मी फ्रेंड्स? ठीक है, मैंने ऊपर वो गलती किया, मेरे हाथ से वो सेल निकल गया, बट एटलीस्ट आई शुड लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड आई शुड नॉट रिपीट. आर यू विथ मी? सो इज प्रोबिंग बीइंग अंडरस्टूड? यस और नो? राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक दिस लैंग्वेज. कम्युनिकेशन होता है तो इसका क्या? नेट पे कम्युनिकेशन करते तो क्या करें? तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें सर? उसमें तो इतना सारा इंटरेक्टिव हो नहीं सकता है ऐसे. नहीं समझा, नहीं आपका सवाल नहीं समझा मैं. इंक्वायरी का मेल आया है, उसको आप आंसर कर रहे हो, फिर ये क्लोज हो जाए. सो आप बोल रहे हैं नॉर्मली आपका आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करके आता है, जो इंक्वायरी आ गया, राइट? सो इंक्वायरी आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? आपने एक बार इंक्वायरी पढ़ा, आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा. फटाफट इंक्वायरी में आपको कंपनी का नाम मिला, उसका वेबसाइट पे जाने का. पहले तो थोड़ा वेबसाइट पे, फिर उधर वो जो आदमी ने इंक्वायरी भेजा उसका नाम और डेजिग्नेशन वगैरह होगा. लिंक्डइन में जाके थोड़ा उसका खबर निकालने का, थोड़ा होमवर्क फर्स्ट क्लास करने का, फिर थोड़ा बैठने का 10 मिनट और सोचने का कि अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन में गैप कहां है. फिर उसको फोन उठा के 1-2 ऐसा सवाल पूछने का जैसा मनीष ने पूछा मेल के थ्रू, कि वो तुमको बोले एक काम करो पोद्दार साहब आप आ जाओ, मेरे को लगता है अपने को मिलना बहुत. तो 1 या 2 ऐसा पावरफुल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा पोद्दार साहब, और इसलिए वो लॉन्ड्री लिस्ट नहीं पूछने का. बोले सर आपका इंक्वायरी मेरे पास आया है, इट साउंड्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई सपोज मोर और लेस वी कैन श्योरली टेक केयर ऑफ दिस इंक्वायरी, but I had 1 or 2, 3 critical questions. Number 1, how was this inquiry generated? Why do you see the need for this product or service? Suppose we can take care of this need of yours, how do you feel it will enhance your business? आपके बिजनेस में कैसा वृद्धि आएगा, आपके बिजनेस में कैसा फायदा होगा, आपको क्या लगता है ये कैसा करना है, क्या करने वाले आप इस, तो आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? बोले ये सब समझूंगा तो मैं आपको बेहतर सॉल्यूशंस
अगर वो आपको टोकेगा कि पददार साहब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, मैंने तो इंक्वायरी भेज दिया है, बोले परफेक्ट है सर, लेकिन इंक्वायरी में मेरे को कुछ हद तक समझ में आ रहा है, मुझे लगता है मुझे और आपको समझने और आपकी कंपनी को समझना जरूरी है ताकि हम आपको बेटर, हो सकता है सर मैं कम कॉस्ट में शायद आपको बेटर सॉल्यूशन दे दूं, वापस व्हाट्स इन इट फॉर यू, मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है, यही चीज को कर सकता हूं, कम दाम में कर सकता हूं, ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूं। सर क्या अपन एक चाय पे 10 मिनट की चर्चा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही इंक्वायरी आता है अपने को फिर वो आठवले दिखता है, तो अपना अंदर का आदमी क्या बोलता है, पाठव पाठव तेरा लवकर कोटेशन पाठव। अभी वो बेचारे का काम क्या मालूम है, वो किधर का एग्जीक्यूटिव होगा परचेस का, उसको बोला है 5 कंपनी को ऐसा इंक्वायरी भेज और 5 कंपनी का रद्दी जमा कर, वो रद्दी जमा करने के बाद एक एक्सेल शीट बना, सबका कंपैरिजन बना, तो वो एक्चुअली बेचारा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कारकुन है, कारकुन, और अपन कारकुन से ही इतना खुश हो जाते हैं कि अपन भी उसको, तो जैसा तुम ये सब 2-3 सवाल पूछेगा ना, वो हड़बड़ा जाएगा, बोले अरुण साहब इतना सब तो मेरे को भी मालूम नहीं है, मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मेरा एक सीनियर है, आप उसकी जान खाओ, मेरी मत खाओ, तो वो सीधा आपको ऑटोमेटिकली, देखो उतना सब उसको समझ में आता नहीं है कि ये कंपनी को क्यों चाहिए, इससे कंपनी का क्या होगा, आगे का 3 साल का प्लान क्या है, वो सब उसको मालूम, उसको बोला था ये इंक्वायरी ले और 5 कोटेशन, तो घबराहट में बोलेगा सर उसके लिए हमारे पास राइट आदमी है, वो राइट आदमी का नाम है सो एंड सो, आप उनसे बात, और जैसे आप ऊपर जाते हो ना उतना काम आसान हो जाता है। सो सेल्स में एक कहावत है, चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है, मतलब क्या, हायर अथॉरिटी पर्सन इज मोर अप्रोचेबल, व्हाट इज इट कॉल्ड, ही और शी इज मोर, जितना हाई सीनियर आदमी होता है ना उतना बेचारा नम्र होता है, उतना अप्रोचेबल होता है, उतना मस्त आदमी होता है, जितना नीचे वाला आदमी होता है ना वो ज्यादा तुम्हारे साथ आनाकानी, क्योंकि उसको अनड्यू इंपॉर्टेंस चाहिए रहता है। सो एमडी की सेक्रेटरी एमडी से ज्यादा पावरफुल रहती है। सो बड़े बड़े कंपनी में ना एमडी से लोग कम डरते, सेक्रेटरी से ज्यादा डरते, बिकॉज मालूम नहीं ये जाके क्या कान भरेगी एमडी का और अपना क्या होएगा। नीचे वाला आदमी कभी भी सेंस का बात नहीं करता, मेरे को नीचे वाले आदमी से कोई नफरत नहीं है, प्रॉब्लम इज वो बेचारे का लिमिटेशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, उसकी एक उड़ान है, उसकी एक कैपेसिटी है। आप उसको एक प्रपोजल भेज रहे हो जो सपोज 50 लाख का है या 5 लाख का या 10 लाख का है, उसका साल भर का पगार शायद 10 लाख नहीं है, उसको तो फिगर देख के ही क्या होता है, घबरा जाता है, पसीना छूटता है उसको, 10 लाख रुपए, एमडी 10 लाख देखेगा, बोले हाँ ठीक है साउंड्स गुड, बुलाओ उनको। वो जो बेचारा महीने का 10,000 कमा रहा है, उसका साल का 1,20,000 कमाई है, उसको आप 10 लाख रुपया बताओगे वो तो घबरा जाएगा। तो उसका फिर एक ही चीज होगा, जैसे आप इंक्वायरी भेजोगे रिटर्न, उसका एक ही लेटर आएगा, योर प्राइस इज टू हाई, कमी करा। अरे 10 लाख का मैं 1 लाख तो नहीं करेगा ना, पर वो क्या बोलता है अभी सबको लिख कर भेजने का स्टैंडर्ड, योर प्राइस इज टू, क्योंकि उसकी औकात, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट इज कैपेसिटी इज दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। सो नीचे का आदमी खाली प्राइस 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 बात करेगा, ऊपर का आदमी क्वालिटी, ऊपर का आदमी बिजनेस में कैसा वैल्यू ऐड होगा, ऊपर का आदमी इससे बिजनेस में क्या फायदा होगा, वो बिजनेस सोचता है। नीचे का आदमी सस्ता सस्ता सस्ता। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन द अप्रोच? सो इंक्वायरी को फटाफट रिप्लाई करना ऐसा कोई रूल या आज तक हमने किया, नो प्रॉब्लम, अभी से नया ट्राई करो। अपन तो ही 15 महीना एक दूसरे के साथ, हमको कितना सारा इंक्वायरी आता है, हमारे को भी एचआर वाला बोलता है एटलीस्ट टेल अस व्हाट इज योर पर डे कॉस्ट। आई सेड हाउ कैन आई टेल यू व्हाट इज माय पर डे कॉस्ट? आई चार्ज एनीवेयर फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 10,000 रुपीज अ डे। Till you don't know what value I can bring to the table, if I tell you 10,000, it is expensive. If I tell you 10 lakh, it's expensive. So it's better we understand each other and see whether we can create value for each other. Because if there is a value, any amount is justified, viable. So can we meet? फिर वो व्यक्ति साला ये तो टूटता नहीं है। Okay, you'll have to come and meet my L&D head. बोले बेच, कौन है वो? क्योंकि उधर सेंस का बात होएगा। वो एचआर एग्जीक्यूटिव बेचारी, अच्छा उसका गलती नहीं, मैं उसको ब्लेम नहीं करता है, लेकिन मेरा बुद्धि तो होना चाहिए 15-20 साल धंधा करने के बाद क्या उसके अंदर फंसने का, तो उसकी उड़ान के बाहर बात करना पड़ता है। जैसे उसकी उड़ान के बाहर बात करूंगा वो मेरे को ऊपर भेज देगी, बोले तू मेरी जान छोड़, मैं तेरे को नया आदमी देती हूँ जान खाने को। सो दैट इज हाउ यू मूव द
next level. I hope we are fairly answering. So मेरे पास बहुत challenge है. We are nearing 6 o'clock. We are yet to finish 2 steps, which is how do I put my product across and closing, right? Okay, so let's get to the next part, and which is where we get into, and don't worry, we'll keep meeting each other, so later on also we can talk to each other, right? But as I told you, sales is a huge subject. और मैं अभी प्रोबिंग के ऊपर मैं 3 दिन का प्रोग्राम करता हूँ, सिर्फ प्रोबिंग. किसी दिन आपके साथ एडवांस प्रोबिंग टेक्निक के काम करेंगे, स्पिन, नील रैकमैन का स्पिन टेक्निक ऑफ प्रोबिंग. सर बहुत कुछ है लाइफ में करने को, हमने भी सीखा, आपको भी सीखना पड़ेगा, हर एक कुछ सीखना पड़ता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट आज अपन इतना मसाला लेके जा रहे हैं कि इसको अगर यूज करेंगे तो अपना लाइफ झिंगा लाला, कुणाल साहब की भाषा में, एब्सोल्युटली करेक्ट. फीचर इज ऑलवेज अनडिस्प्यूटेबल. अनडिस्प्यूटेबल मतलब त्याच्यावर वाद नहीं होऊ शकत. इट कैन बी प्रूवन, राइट? सो सपोज यू टेल मी, मैं आपको अपने मशीन पे 5 साल का गारंटी दूंगा. कैन यू गिव इट टू मी इन राइटिंग? सपोज इट्स अ 5 year गारंटी. यस और नो? अभी आप फ्रिज या टीवी खरीदते हो, उस पर लिखा रहता है 5 years वारंटी, स्टिकर ही लगा के देते हैं ना लोग, उसके ऊपर कोई डिबेट? सर इसमें इस तरह का कूलिंग होता है, लिखा हुआ आता है उसके कैटलॉग पे, सब के ऊपर. सो फीचर्स इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, इसके ऊपर वाद विवाद नहीं होता, राइट?